माय नेम इज़ डॉक्टर मंजूर हसन एंड प्रीवियसली वर्कड एज अ कंट्रैक्चुअल लेक्चरर फॉर 13 इयर्स। एमए पॉलिटिकल साइंस किया है, उसके बाद मास्टर ऑफ फिलॉसफी किया है जिसको एमफिल कहते हैं, उसके बाद पीएचडी किया है। पीएचडी करने के बाद मैंने बीएड किया, बीएड के बाद मैंने मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया। मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया। फिर किया मैंने पीजीडीडीएम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट। नाउ द फ्यूचर इज गोइंग टुवर्ड्स द डार्कनेस, so I have turned my life in another way, that is to become the shopkeeper, but it was fortunate as well as unfortunate. by Allah मैं कहता हूँ कि मेरे जेब में 500 रुपया नहीं था। Hello and welcome to the Rational Rover. This is your host Sheikh Mohammad Aman, accompanying my co-host Junaid Malik. and we are here with a very special and dignified personality. Please give your introduction, sir. My name is Dr. Manzoor Hassan and previously worked as a contractual lecturer for 13 years. Presently, I am working as a street vendor in district Shopian. तो जैसे कि दोस्तों आपने सुना ही, इनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। डॉक्टर यानी कि डॉक्टरेट की डिग्री इनके पास है। हर कोई ऐसी डिग्री हासिल नहीं कर पाता, अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल देने पड़ते हैं, उसके बाद जाके ये डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है। हम डॉक्टर मंजूर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी उन्होंने डिग्रीज करी हुई हैं। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया है, उसके बाद मास्टर ऑफ फिलॉसफी किया है जिसको एमफिल कहते हैं, उसके बाद पीएचडी किया है। पीएचडी करने के बाद मैंने बीएड किया, बीएड के बाद मैंने मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया। मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया। फिर किया मैंने पीजीडीडीएम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट। जी जी। तो उसके साथ 2011 में मैं तैनात हुआ एज ए कॉलेज कंट्रैक्चुअल हायर एजुकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से। 2011 के बाद कंटिन्यू ये मेरा सफ़र जो रहा इन डिफरेंट डिग्री कॉलेजेस, कहीं 2 साल, कहीं 3 साल, कहीं 4 साल, कहीं 5 साल, तो ये मेरा सिलसिला जो है 12 साल तक रहा। जी। 12 साल के बाद जब मुझे लगा कि नाउ द फ्यूचर इज़ गोइंग टुवर्ड्स द डार्कनेस, जी जी। तो आई हैव टर्न्ड माई लाइफ इन अनदर वे, दैट इज़ टू बिकम द शॉपकीपर। बट it was fortunate as well as unfortunate. At that time there was no resource, and without resources I cannot do nothing. Nothing. So I became a street vendor in the district Shopian, the lovable district, the lovable people here who supported me in a different manner, in a different ways, supported in such a way that just like presently I am just like here staying as a shopkeeper, not a street vendor. However, this life which I have served, or that which I have in the past, have given me an immense lecture, have given me an immense what type I have no words to express. from a chair on a path, On a it means a lot. Your life immensely changed. Immensely changes, because when I started my work as a college contractual, it was by my wish, and it was according to my status. But why and became the street vendor, it was not by my wish, but it was a forced work. Beyond this forced work, it was only my family. Because Exactly. इंसान कुछ भी करता है अपनी फैमिली के लिए करता है। Dr. Manzoor sir here told about certain things that adaptation is more reliable and relatable to environment, and he narrated his story from cheer to path. That means how he adapted and sustained towards environment. Sir, I want to remind you the struggles when you first of all visited the district Shopian as a street vendor. What were your struggles at that time? Thank you, sir. So far, my journey from my home towards Shopian, at that time I was nothing knowing about the Shopian, nor whether it is clock tower, whether it is Jamia Masjid, whether it is hospital. But certain people give me we can say a way that whether to you sit here, whether my mind was at that time that I will see in which district I will be adopted. But Anantnag, Pulwama, that both the districts are my hometowns, and it was impossible that I will work there, because I have studied so many students. I have given the knowledge to so many students, thousands and lakhs in the students. That was why I chose Shopian. Sir, tell me something about your background. From which background you are, where do you live, and what are your struggles towards your family? जैसे सर ने कहा कि स्ट्रगल्स के बारे में, मैंने स्ट्रगल तब से शुरू किया है जब से मेरे जिस्म में जो अब ये मेरे दिमाग में ये जान आई है कि अब मुझे अपनी फैमिली के लिए करना है। इट वाज
फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से इट वाज 2011. बियॉन्ड दिस स्टोरी कि मैंने जो मेरी स्ट्रगल उससे पहले थी वो मेरे फैमिली की तरफ से थी. उन्होंने मुझे मतलब वहाँ तक पहुँचाई, उन्होंने मुझे इतना खर्चा दिया कि मैंने सबसे अला डिग्री जो गए होंगे डॉक्टरेट हासिल की. उसके बाद 2011 में मैंने मतलब उस समय हमारा जो पे था वो था 12,000, 18,000, 28,000 तक पहुँचा. लेकिन आप देख रहे हैं कि आज जो खर्चे एक फैमिली के आते हैं वो कितने आते हैं, लाखों में आते हैं. तो इट वाज इम्पॉसिबल. And after I will say about this thing that maybe it will be just like the politician question that after the 2019 के बाद 2022 तक जो हमें 21-22 तक जो हुआ वो सबसे ज़्यादा या तो हमें 6 महीने की पे मिलती थी या इट वाज ओनली फॉर द 3rd month, 4 months या 6 months, 7 months. And a family cannot be run with the 4 months income or 5 months income. And the income should be, if you have to run your family, the income should be steady and steady. It should be continuously. Then you can run your families. And after that, in my mind, I see what I can do now. But the back was very weak. What type of resources my parents have, they have served upon me. But it costs nothing for my parents. I say, by this education, it is nothing cost for my family. कुछ भी नहीं हुआ उनको हासिल मेरे इस पढ़ाने से. खाली एक चीज़, मैं अभी भी मुझे अगर सपोर्ट है तो वो मुझे फैमिली की तरफ से है. मैं यहाँ से 8 बजे जाता हूँ, 10 बजे तक मेरी फैमिली इसी के साथ होते, वो कर लो, ये कर लो, ये कर लो. लेकिन कहीं मैं अपने मतलब जो साथी है या अपने बच्चों को मतलब जो अभी स्टडी कर रहे हैं, सिका इज़ नॉट लिमिटेड. इनको हिम्मत नहीं हारनी है. ये मुकद्दर में लिखा होता है कि इसके मुकद्दर में क्या है. एक मैं जब सुबह आ जाता हूँ तो मेरे जेब में 20 रुपये या 50 रुपये से आगे होता ही नहीं है. लेकिन जब मैं यहाँ से जाता हूँ वही खाली 50 रुपये नहीं होते, बल्कि मेरे पास सफिशेंट अमाउंट होता है. अब जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया तो मैंने शायद मैं कह रहा हूँ कि मेरे इस पे शायद 10,000 या 8,000 का भी 10 या 8,000 का भी इस पे सामान नहीं था. लेकिन आज मैं सच में कह रहा हूँ कि मेरे पास इसमें लाख से भी ऊपर सामान है. मैंने आराम से मेहनत तो करनी है. वर्क इज वर्शिप. इसमें अगर काम में आप ऐसा जान लगाओगे तो यू विल सक्सीड इन ईच एंड एवरी फील्ड. हाँ, इफ देयर इज रेलेवेंस ऑफ द गॉड, इफ देयर इज द विश ऑफ द गॉड, जब उसकी मर्जी होगी तो कुछ भी पॉसिबल है. उसकी मर्जी नहीं होगी तो यू कैन डाइवर्ट अनदर वे. एक इंसान ऐसा कर रहा है कि एक इंसान ने कोशिश की कि मैं ऐसा करूं. मैंने भी ख्वाब देखे होंगे. मैंने भी ख्वाब देखा था कि मैं प्रोफेसर बनूं, प्रोफेसर से नहीं तो लेक्चरर बनूं, लेक्चरर नहीं तो टीचर बनूं, टीचर नहीं तो क्लर्क नहीं बन पाया. कोई बात नहीं, ये मेरी मुकद्दर में. आई हैव डाइवर्टेड माय पाथ, आई हैव डाइवर्टेड माय वे एंड आई हैव चूज़न अनदर वे. बाय दिस वे मे बी क्या मैं कह रहा हूँ कि आज भी कह रहा हूँ कि ये वे चेंज करने से मुझे बहुत फ़ायदा मिला. तो आई रिक्वेस्ट माई डियर वन्स, नियर वन्स, प्लीज़ do not intermingle with this thing that you will choose only a single path. Divert your mind in another way and you will get definitely you will get the halal rizq and more than that as you are wishing from the one side. कि अगर इंसान कह रहा है कि मैं 50,000 कमाऊं, मैं कह रहा हूं कि मैं उससे ज़्यादा कमा रहा हूं. मैं कह रहा हूं कि मैं उससे ज़्यादा कमा रहा हूं. अगर मुझे उस समय 10,000 या 22,000 तनख्वाह मिलता था या 30,000 में, मैं कह रहा हूं कि मैं सुबह शाम मेहनत करता हूं और विद द हेल्प ऑफ दिस शिपियन पीपल, विद द सराउंडिंग पीपल, जो पीछे मेरे बैठे हैं, जो आगे बैठे हैं, जो मेरे पास आते हैं, बड़े बहुत प्यार से आते हैं, मैं कह रहा हूं मैं उनसे ज़्यादा कमा लेता हूं. मंजूर साहब, my question is that please share your experience from day 1 to today here. First of all, when I started my journey from my home, by Allah मैं कहता हूँ कि मेरे जेब में 500 रुपया नहीं था. गाड़ी मैं तेल डालने के लिए 500 रुपया नहीं था. लेकिन मैं आज कह रहा हूँ कि मैं अपनी फैमिली को लेवेस्ट से लेवेस्ट मिडल तक ही पहुँचा रहा हूँ विद बिकॉज ऑफ दिस. तो सबसे अच्छी बात है, मैं जो आपको कहूँ कि अपने जो मेरे दोस्त देख रहे हैं या जो देखेंगे कि डाइवर्ट योर पाथ. If you are fail in one way, divert your path. You will you will succeed in your life. Exactly. वो कहते हैं ना, एक रास्ता अगर बंद हो जाए अल्लाह ताला 1000 रास्ते खोल देता है. वैसे ही हमारे मंजूर साहब की कहानी है. इनको पढ़ा, इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, कई सारी डिग्रीज डिप्लोमास होने के बाद इनको वैसी जॉब नहीं मिली. इन्होंने अपना हलाल रिज़्क़ कमाने के लिए, अपनी फैमिली को पालने के लिए ये रास्ता इख्तियार किया. आखिर
एक जानवर जब सुबह अपने घोंसले से निकलता है, उसको कहीं नहीं पता होता कि मेरे रिज़्क कहाँ पे लिखा है। वो एक जगह बैठता है तो वहाँ पे देखकर नहीं मिलता है, दूसरी जगह। इसी तरीके से इंसान में तो ये अशरफुल मखलूक आता है, इसमें जहन है, इसमें अकल है, तो इसको सोचना चाहिए कि मेरे लिए सबसे बेहतर क्या रहेगा। तो डाइवर्ट द पाथ एंड यू विल गेट सक्सीड। थैंक यू सर ऑल। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मंजूर साहब। द थिंग इज वी पुट हियर, नटशल में बोलूँगा, सर ने हमारे साथ जो गुफ्तगू की, ये इसमें 3-4 मैसेज सर ने दी। पहली मैसेज अल्लामा इकबाल की शायरी भी एक है कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहा और भी है, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। कि अपने स्काई को या अपने अर्थ को लिमिटेड मत रखो, अनलिमिटेड बनाओ, अनलिमिटेड स्कोप्स आप इख्तियार करो। और अगर आपको लग रहा है कि आई एम ए फेलियर इन वन फील्ड, दैट मीन्स इट वाज माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ एंड नाउ व्हेन आई विल चूज माई सेकंड अटेम्प्ट इन लाइफ आई विल सक्सीड। सो दिस इज ऑल अबाउट द एपिसोड। थैंक यू वेरी मच।